Hello everyone, welcome to the Nerd Junction, the channel where knowledge meets fun. We're beginning with Unit 2 of Paper 1, Part A. We are already done with Unit 1. So if you are with me so far, I congratulate you on your timely achievements of your targets. Job well done. Let's delve right into the syllabus. Now, if we look at the syllabus, we are dealing with paper 1. We are already done with unit 1. We are done with all these three topics. Today we are starting with unit 2, which is sociology as science, and we'll be dealing with the first topic in this video, which is science, scientific method and critique. The handout has been already uploaded on the Telegram channel, the link to which has been placed in the description below as usual. Make sure that you download it. Now let's start. When we're talking about science, scientific method and critique, let us first understand the basics. What is science? You need to know one definition of science at least. You can use a thinker here, and even if you don't use any thinker here to remember the definition, you can build up a definition here, and that will be completely fine. Okay? So, what is science? Basically, science is just a systematic and organized way to understand the world. वर्ल्ड थोड़ा क्योटिक है. वर्ल्ड को समझना है तो हमने एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच ली, जिससे हम वर्ल्ड को एक बेटर और लॉजिकल मैनर में समझ सकें, एंड वी कैन अनकवर द मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. The second topic that we need to cover in this is the basic postulates of science. Postulate मतलब क्या? Postulate मतलब truths. तो basic truths of science क्या है? The first truth is empiricism. Do you see this heading right here? Observation and description of phenomena. These are here formulation of hypothesis, peer review, generalizability. I have put these headings here जिससे तुम अपने answers में अलग अलग headings भी डाल सकते हो and you can still write the same point. Okay? तो let's first start with empiricism. Empiricism मतलब क्या होता है? Empiricism means that scientific knowledge should be based on observation and evidence. ठीक है? ये words अगर नहीं लिखे हैं मैंने यहाँ पे तो तुमको खुद लिखने हैं. Plus you have to research on these words. मैंने सारे pointers दे दिए हैं. In fact, if you understand what these are, you can write the definitions on your own as well. But if you can't remember, I suggest that you just put a dash here and write the definition here. इधर ही. यहाँ पर dash लगाओ, यहीं पे लिखो. Consolidate your notes. Don't expand them. You need to revise them multiple times. Okay? So we were dealing with empiricism. Empiricism क्या होता है? It means कि दो चीज़ें बताई. It should be based on your scientific knowledge should be based on observation and evidence. अब imagine करो जैसे कि तुम एक बेकरी में हो and you want to figure out कि कौन सा केक जो है वो मेरी वेडिंग सेरेमनी के लिए बेस्ट रहेगा. ठीक है, मैं कौन सा केक ऑर्डर करूँ जो सबको अच्छा लगेगा. सो व्हाट विल यू डू? यू विल टेक सैम्पल्स एंड यू विल टेस्ट देम ऑल राइट. व्हाट आर यू डूइंग हियर? यू आर टेस्टिंग ईच केक, यू आर कलेक्टिंग डेटा एंड यू आर एनालाइजिंग सबसे अच्छा और सबसे डिलीशियस कौन सा है. ये वाला थोड़ा ज़्यादा चॉकलेटी है, ये वाले में थोड़ी ज़्यादा फ्रोस्टिंग है. उस हिसाब से तुम एनालाइज करोगे एंड यू विल मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. यू विल कम टू एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. यू आर एक्चुअली यूजिंग अ साइंटिफिक मेथड टू कम टू अ कंक्लूजन. ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड, साइंस हमेशा सिर्फ लैब में नहीं होती है. साइंस हमेशा सिर्फ एक्सपेरिमेंटल जो लैब में देखते हैं अपन, लैब कोट पहन के टेस्ट ट्यूब्स मिल रही है, दैट इज़ नॉट साइंस. साइंस तुम यहाँ भी यूज़ कर सकते हो. साइंटिफिक मेथड का ऐसे भी इस्तेमाल हो सकता है. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिविटी, द सेकेंड पोस्टुलेट. इन साइंस रिसर्चर्स नीड टू रिमेन न्यूट्रल, और ज़रूरत होती है कि वो अपने पर्सनल बायस को मिनिमाइज करें. जैसे कि एक रेफरी होता है एक सॉकर मैच में, उनको भी ऐसे ही बिल्कुल यू नीड टू रियलाइज दैट यू आर अ रेफरी एंड यू नीड टू बी न्यूट्रल एंड फेयर. द रिसर्चर नीड्स टू बी न्यूट्रल, फेयर, एंड यू नीड टू मिनिमाइज योर पर्सनल बायस. इन सोशियोलॉजी रिसर्चर्स क्या यूज़ करेंगे? वो स्टैंडर्डाइज मेथड्स यूज़ करेंगे. ठीक है, दे विल फॉलो स्टैंडर्डाइज मेथड्स, दे विल फॉलो एथिकल गाइडलाइंस. ठीक है, एंड दे विल ट्राई टू सेपरेट देयर पर्सनल बिलीव्स फ्रॉम द रिसर्च प्रोसेस. बट याद रखो कि कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी
इम्पॉसिबल है. यू कैन नॉट बी कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव, स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विद ह्यूमंस. हाउ कैन यू बी ऑब्जेक्टिव? ठीक है. तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉस्टुलेट विच इज टेस्टेबिलिटी. ठीक है. अब टेस्टेबिलिटी क्या होता है? साइंटिफिक थ्योरीज जो होती हैं दे शुड बी फॉर्मुलेटेड इन अ वे दैट अलाउज देम टू बी टेस्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन. अगर मैं उसे टेस्ट ही नहीं कर सकती हूँ तो मैं कैसे बताऊंगी कि मेरी साइंटिफिक थ्योरी सही है या नहीं? इमेजिन करो कि तुम एक सोशियोलॉजिस्ट हो जिसको रिलेशनशिप पढ़नी है बिटवीन सोशल मीडिया यूसेज एंड सेल्फ एस्टीम, कि सोशल मीडिया यूसेज ज़्यादा यूज़ करने से सेल्फ एस्टीम बढ़ता है या कम होता है, मुझे ये चेक करना है. नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डिज़ाइन सर्वेज, आई कैन यूज़ एक्सपेरिमेंट्स टू कलेक्ट दिस डेटा एंड देन आई कैन टेस्ट माई हाइपोथेसिस. सपोज करो मेरा हाइपोथेसिस था कि ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करने से सेल्फ एस्टीम जो है वो कम होती है, वो एस्टीम जो है वो गिरता है. अगर मेरा ये हाइपोथेसिस था तो मैं इसको टेस्ट कैसे करूँगी? मैंने सर्वे करा, मैंने कंडक्ट करा सर्वे, उसके अंदर क्वेश्चन दिए, मैंने देखा कि इस तरीके के आंसर्स देने से इसका मतलब ये है कि इसका एस्टीम जो है वो हाई है. मैंने ऑब्जर्व करा कि जो सोशल मीडिया यूज़र्स ज़्यादा यूज़ कर रहे थे सोशल मीडिया को, उनका एस्टीम जो था वो लो नहीं था, वो तो हाई निकला. तो मेरी जो हाइपोथेसिस थी वो फेल हो गई. तो मैं टेस्ट कर पा रही हूँ अपनी थ्योरी को. अभी मैं ये नहीं बोल रही कि मेरी थ्योरी सही है या गलत, वो आएगा नेक्स्ट पॉइंट में. अभी मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि आई शुड बी एबल टू टेस्ट माई थ्योरी. ठीक है. अब ये थ्योरी सही है या नहीं, ये होगा फॉल्सिफाइबिलिटी. अभी क्या हुआ, मैं फॉल्सिफाई कर रही हूँ किसी चीज़ को. फॉल्सिफाई का मतलब वही है जो तुम्हें समझ में आ रहा है. साइंटिफिक थ्योरीज को ऐसे फॉर्मुलेट करना पड़ेगा दैट दे अलाउ देमसेल्व्स टू बी पोटेंशियली डिस्प्रूवन. बिग मैजिक ट्रिक के बारे में सोचो. एक अच्छा मैजिशियन क्या करेगा, वो अपने ऑडियंस को कभी भी अपने सीक्रेट्स को डिस्कवर कर पाए ये नहीं चाहेगा, नहीं तो गेम खत्म. सोशियोलॉजी में बिल्कुल वही तब गेम खत्म हो जाता है अगर मेरी थ्योरी डिस्प्रूव कर दी गई. अगर मेरे सीक्रेट जो थे जिससे वो थ्योरी चल रही थी वही डिस्प्रूव हो गए कि भाई ये तो मैजिक ही नहीं है, ये तो गलत है, तो बस मेरी थ्योरी डिस्प्रूव हो जाएगी एंड देन आई नीड टू फाइंड अ न्यू थ्योरी. ओके. द लास्ट और द सेकेंड लास्ट पॉस्टुलेट इज रेप्लिकेबिलिटी. ठीक है. रेप्लिकेबिलिटी का क्या मतलब हुआ? दिस मीन्स दैट साइंटिफिक फाइंडिंग्स शुड बी रेप्लिकेबल बाय अदर रिसर्चर्स. इससे क्या होता है, इससे बढ़ती है तुम्हारी रिलायबिलिटी. ठीक है. रिलायबिलिटी कैसे बढ़ती है? अभी रिलायबिलिटी हम नेक्स्ट टॉपिक आएगा जो इस आज के टॉपिक्स में कवर्ड नहीं है. आज हम ए, बी एंड सी पार्ट्स कवर करेंगे, लेकिन डी पार्ट जो है इट विल टॉक अबाउट रिलायबिलिटी एंड फैक्ट्स, वो बाद में आएगा. लेकिन ये समझ जाओ कि अगर रेप्लिकेबिलिटी होती है तो तुम्हारी रिलायबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है. ठीक है. इट इज़ लाइक अ रेसिपी फॉर सक्सेस. अगर तुम अपनी सीक्रेट रेसिपी फॉर द वर्ल्ड्स बेस्ट पिज़्ज़ा शेयर कर दोगे तो अदर शेफ्स जो हैं वो लोग भी उनको फॉलो करके वो चीज़ वही रिजल्ट बनाने चाहिए, तब जाके तो तुम्हारी कोई वैल्यू है. जैसे तुम मैगी खाते हो, अब वो जो मैगी का सीक्रेट फॉर्मूला है, मैं मैगी तुम्हारे घर पे खाऊं या मैगी किसी के भी घर पे खाऊं, सबके घर पे सेम स्वाद आता है, यूनिवर्सल रिजल्ट्स आते हैं और वो सेम रिजल्ट्स आते हैं अगर वो सेम चीज़ फॉलो होती है. सो दैट इज़ माई रेप्लिकेबिलिटी एंड दैट इंक्रीजेज माई रिलायबिलिटी. मैगी ब्रांड की रिलायबिलिटी इसलिए तो बढ़ जाती है क्योंकि हर जगह सेम रिजल्ट आ रहा है और वैसे ही उतना ही स्वादिष्ट लग रहा है. ठीक है. इन सोशियोलॉजी रेप्लिकेटिंग स्टडीज हेल्प्स एस्टैब्लिश जनरल स्टेटमेंट्स और जनरलाइजेबिलिटी एंड रोबस्टनेस ऑफ सोशियोलॉजिकल फाइंडिंग्स. अब लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रिडिक्टिव पावर. देखा है एस्ट्रोलॉजर्स अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं. एक क्रिस्टल बॉल होती है जो तुम्हारे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करती है. तो basically what they are doing, they are trying to make sense of an uncertain future or an uncertain world that lies before. साइंस के पास भी ये प्रिडिक्टिव पावर होनी चाहिए. सपोज करो अगर कोई इकोनॉमिक थियरी है, वो आज के वेरिएबल्स एनालाइज करके यही प्रिडिक्ट नहीं कर पा रही कि रिसेशन आने वाला है या नहीं, तो वो थियोरी काम की हुई क्या? नहीं. साइंस शुड एसेंशियली हेल्प अस, तो इट शुड हैव अ प्रिडिक्टिव पावर. वी आर डन विद बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ साइंस. We are done with definition of science. Now, let's move to the next topic, which is challenges in application of the scientific method in sociological research. ठीक है. ये जो scientific methods है ये हम easily apply क्यों नहीं कर पाते हमारे sociological research में? ठीक है. Here you need to use some thinkers, जो कि मैंने अपने notes के अंदर अलग से case studies and examples में दे रखे हैं. इस पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये दो मैंने एक्स्ट्रा ऐसे ऐड कर दिए तुम्हें बताने के लिए कि तुम कुछ भी ऐड कर सकते हो, कितने भी थिंकर सोच सकते हो, इसलिए आई एडेड दीज टू थिंग्स.
Now we were discussing the challenges in application of the scientific method in sociological research. अब सोशोलॉजिकल रिसर्च के अंदर साइंस यूज़ कर लूँ तो प्रॉब्लम क्या है? इट इज़ अ गुड वे. साइंटिफिक मेथड तो ज़्यादा लॉजिकल होता है और मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाऊंगी, राइट? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? वेल, द फर्स्ट चैलेंज वी एनकाउंटर इज एथिक्स. ठीक है. व्हेन स्टडिंग ह्यूमन सब्जेक्ट्स इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट वी कंसिडर एथिकल गाइडलाइंस. सिर्फ इमेजिन करो तुम कि तुम एक सोशोलॉजिस्ट हो एंड यू आर स्टडिंग पीपल्स बिहेवियर एट अ वाटर पार्क. ठीक है, वाटर पार्क में तुम पीपल का बिहेवियर ऑब्जर्व करो एंड यू स्टडिंग कि लोग कैसे कैसे एक्ट करते हैं. नाउ यू वांट टू ऑब्जर्व देयर इंटरेक्शंस, राइट? बट यू हैव टू बी माइंडफुल कि तुम इंट्रूसिव ना हो जाओ. यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ इंट्रूसिवनेस. यू नीड टू टेक इन टू अकाउंट कंसेंट. ठीक है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट. यू नीड टू इंश्योर कि उनकी प्राइवेसी को तुम हैम्पर नहीं करो while conducting your sociological research. Otherwise, you don't want to end up being the weirdo who is lurking in the corner with binoculars, right? तुमको एक serious sociologist जैसा दिखना है जो कि research कर रहा है. You need to blend in. So that is something you need to keep in mind and it is very difficult to achieve when you are conducting sociological research. Another complexity is the complexity of social reality. Unlike controlled laboratory settings जो कि natural sciences में होती हैं, सोशल फिनोमिना में क्या होता है, बहुत सारे इंटरैक्टिंग वेरिएबल्स होते हैं. लैब के अंदर तो मैं तो कंट्रोल करती हूँ कि इस वाले केमिकल को इस वाले केमिकल में मिला देना है तो ये बन जाएगा. लेकिन सोसाइटी के अंदर चीज़ें ऐसे वर्क नहीं करती. देयर आर ए लॉट ऑफ इंटरैक्टिंग वेरिएबल्स एक्टिंग एट द सेम टाइम. ठीक है, तो क्या करना चाहिए इस वक्त? अपन का बेस्ट तरीका क्या है? वी कैन ट्राई टू यूज अ साइंटिफिक मेथड, बट we need to keep in mind that there is a complex social world out there. एक objective world exist नहीं करता जैसे कि साइंस में exist करता है. ठीक है. Now the third thing, value laden nature. ठीक है, अब value laden nature की बात करते हैं. value laden nature क्या होता है? जो कि value neutral नहीं हो, वही हुआ value laden, right? It is not a value neutral science. पर्सनल पर्सपेक्टिव्स आते ही आते हैं. सोशल कॉन्टेक्स्ट और पर्सनल पर्सपेक्टिव्स जो होते हैं दे शेप द एंटायर रिसर्च प्रोसेस. ठीक है, तो यू नीड टू कीप इन माइंड दैट दीज थिंग्स विल बी देयर एंड दीज विल एक्ट एज अ लिमिटेशन व्हाइल कंडक्टिंग योर सोशियोलॉजिकल रिसर्च. जैसे कि हम कैसे पता लगाएं कि इज इट ग्रीन और इज इट ब्लू? क्योंकि जो तुम ये सोचो कि हैव यू सीन दैट पिक्चर जिसके अंदर एक ड्रेस होता है और लोग बोलते हैं कि नहीं ये मुझे ग्रीन दिख रहा है, मुझे ब्लू दिख रहा है. कोई श्योर नहीं है उस आंसर के बारे में. इट इज़ एन ऑप्टिकल इल्यूजन और इट इज़ सेड कि वो आपका ब्रेन का कौन सा पार्ट फंक्शन कर रहा है, आप कौन से पार्ट पे फोकस करवा रहे हो, उस हिसाब से रिजल्ट आता है. बट सोशियोलॉजी इज स्टडिंग दीज फैक्टर्स एट अ ग्रांड स्केल ऑन ए डेली बेसिस. तो अगर मुझे ये करना है तो बहुत ट्रिकी हो जाता है बिकॉज सोशियोलॉजी इज वैल्यू लेडन. सोशियोलॉजी सोसाइटी जो है तुम उसको अलग नहीं कर सकते हो. ठीक है. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस इज, इसके बाद ये याद रखना ये मेजर पॉइंट्स हैं. यू कैन ऐड मोर पॉइंट्स इफ यू फाइंड, बट अगर ये लिख दोगे तो आंसर इज गुड. आंसर इज लाइक यू हैव रिटन अ गुड आंसर इफ यू हैव कवर्ड दीज पॉइंट्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंटेक्चुअल एंड हिस्टोरिकल स्पेसिफिसिटी. अब जो रिसर्च मैंने आज करी है वो रिसर्च सालों बाद रेलिवेंट हो, या फिर जो मैं रिसर्च आज कर रही हूँ किसी हिस्टोरिकल इवेंट पे, वो क्या सारी सोसाइटीज़ में या सारे टाइम फ्रेम्स में रेलिवेंट है, या फिर किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कौन सी चीज़ हुई थी, ये देखना पड़ता है. ये तो देखना ही पड़ेगा. आज अगर कैपिटलिज्म का जो चेहरा है वही क्या कैपिटलिज्म का तब था जब कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिज्म के बारे में बात करी थी, या फिर कुछ चेंजेस हुए हैं? क्या जो आज मॉडर्निटी है वही मॉडर्निटी उस वक्त थी जो मॉडर्निटी इनिशिएट ही हुई थी? चेंज हुआ होगा कुछ. सो वी नीड टू टेक इनटू अकाउंट कंटेक्चुअल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट केस स्टडीज एंड एग्जाम्पल्स. अब इस पे एक क्वेश्चन भी आया हुआ है डायरेक्ट, तो तुमको ये बहुत फेमस स्टडी है, एमाइल डर्काइम की स्टडी है, सुसाइड अ स्टडी इन सोशियोलॉजी. व्हाट दे डिड वाज डर्काइम एग्जामिन्ड सोशल फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू वेरिएशंस इन सुसाइड रेट्स. उन्होंने बहुत सारा डेटा कलेक्ट करा एंड ही यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स. ठीक है. उन्होंने बेसिकली एक पजल को सॉल्व करना चाहा कि जो चॉइस है सुसाइड का, क्या सब एक डेटा तो है, एक ऑब्जेक्टिव तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो जितना भी डेटा अवेलेबल था जहाँ से भी उन्होंने कलेक्ट करा है,
पुलिस स्टेशन एंड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस दे फाउंड अ डेटा कि हाँ सुसाइड हुआ है, सुसाइड रेट इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, लेकिन वो उन्होंने देखा कि जैसे उनकी रिसर्च करी जब उन्होंने उसकी एक एक इंसान के अंदर घुस के, ही रियलाइज कि जो अनमैरिड लोग हैं उनके अंदर सुसाइड रेट ज़्यादा हायर है. सो ही रिसर्च्ड लाइक अ सोशियोलॉजिस्ट. ठीक है, उन्होंने एक नेचुरल साइंस की तरह इसको रिसर्च नहीं करा कि सिर्फ नंबर्स पे फोकस करा. विद क्वांटिटी ही ऑल्सो फोकस्ड ऑन द क्वालिटी. अब ये एक एग्जाम्पल है जो तुम बता सकते हो कि साइंटिफिक मेथड कहाँ यूज हुआ था. डर्कहाइम की सुसाइड वाली स्टडी में हुआ था. बट नाउ यू सी मैक्स वेबर का जो सोशल एक्शन और आइडियल टाइप है, आई हैव नॉट टॉट दिस, लेकिन दिस इज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आफ्टर ऑल दो मैं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स आगे थिंकर्स में कवर कर दूंगी, दीज कॉन्सेप्ट्स एटलीस्ट. लेकिन यू शुड नो व्हाट दीज आर इफ यू आर प्रिपेयरिंग और इफ यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. सोशल एक्शन एंड आइडियल टाइप्स जो है मैक्स वेबर का, चाहे से मार्क्स का हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म हो और डायलेक्टिकल एनालिसिस हो, इन सब के अंदर एक साइंटिफिक मेथड यूज़ करा है. एक साइंटिफिक मेथड क्यों यूज़ करा इन्होंने? मैंने उस वक्त बताया था कि एक साइंटिफिक टेम्पर का ग्रोथ हुआ था, मैंने बताया था रेनेसॉ, मैंने बताया था एनलाइटनमेंट, एंड दीज थिंकर्स ये उसी वक्त तो आए थे. तो दीज पीपल वर वेरी मच इंक्लाइन टूवर्ड्स यूजिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड्स वाइल कंडक्टिंग देयर सोशियोलॉजिकल रिसर्च. तो इन लोगों ने साइंटिफिक मेथड का यूज़ करा अपने अपने थियोरीज में, अपने अपने कॉन्सेप्ट इवॉल्व करने में. और साइंटिफिक मेथड और कुछ भी नहीं है, बस ये जो पॉस्टुलेट्स लिखे हैं 6 वो, और बेसिकली अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज वे टू स्टडी वॉट एवर दे आर स्टडिंग. ठीक है, नाउ वी आर डन विद definition, we are done with the basic postulates of science, we are done with the challenges and application of the scientific method in sociological research, and we are done with case studies and examples. Now let's deal with the last part जो कि है PYQs. अब देखो 2020 में पूछ, अब देखो मैंने जहाँ पर ये स्टार लगा रखा है ना, इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को आंसर तुम पूरी तरीके से यहाँ से नहीं कर सकते हो, लेकिन नॉट कंप्लीटली फ्रॉम दिस टॉपिक. आगे भी कुछ टॉपिक्स कवर होंगे, उसके बाद इस टॉपिक का आंसर तुम पूरी तरह कर पाओगे, इस क्वेश्चन का आंसर तुम पूरी तरह कर पाओगे. बट यू कैन स्टिल आंसर द क्वेश्चन राइट नाउ, दैट इज वाई पुट इट, जिससे यू पुट योर ब्रेन टू यूज. नाउ 2020 का क्वेश्चन है, इज सोशियोलॉजी अ वैल्यू फ्री साइंस? वैल्यू फ्री साइंस है क्या? मैंने यही पढ़ाया अभी कि वैल्यू लेडन नेचर है. यही तो चैलेंज था कि हम साइंटिफिक मेथड क्यों नहीं लगा पाते. तो क्या तुम इसकी दोनों साइड ये पॉइंट्स लिख सकते हो कि हाँ वैल्यू फ्री भी है और वैल्यू लेडन भी है? वैल्यू फ्री और वैल्यू लेडन. वैल्यू फ्री कौन बोलेगा? बोलते हैं हाँ पॉजिटिविस्ट, हम इसे एकदम वैल्यू फ्री की तरह पढ़ सकते हैं, हम तो इसे एकदम नेचुरल साइंसेस की तरह पढ़ सकते हैं. और वैल्यू लेडन क्यों? क्योंकि हमारे पर्सनल बाइसेस तो कभी हट ही नहीं सकते. तो क्या वो एक वैल्यू फ्री साइंस हो सकती है कभी भी? हमारे पर्सनल बाइसेस कहाँ जाएंगे? प्लस वी आर स्टडिंग सोसाइटी जो कितना कॉम्प्लेक्स है. इट इज़ नॉट लाइक कंट्रोल्ड वेरिएबल्स इन अ लैबोरेटरी. तो वो जो भी हमने ऊपर पढ़ा है वो चीज़ यहाँ पे लिख सकते हो. हालांकि वी विल बी डीलिंग विद दिस क्वेश्चन इन वे मोर डिटेल इन लेटर टॉपिक्स, बट यू कैन राइट एन आंसर ऑफ दिस इवन इफ यू डोंट नो आगे वाला टॉपिक. नाउ 2018 का क्वेश्चन है, डज साइंटिफिक मेथड मेक सोशियोलॉजी अ साइंस? इलस्ट्रेट योर आंसर विद डर्कहाइम्स मेथड. मैंने बोलता डर्कहाइम पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, हमें ये इलस्ट्रेट करना है. हमने ये देखा कि हाँ ठीक है, हमको इलस्ट्रेट करना है कि हम साइंटिफिक मेथड की, अब ये चीज़ पूछिए कि इसमें साइंटिफिक मेथड की वजह से सोशियोलॉजी की साइंस बनती है क्या? बिल्कुल, यस, इट कैन बिकम ए साइंस. हम बता दो कि जो साइंस के पॉस्टुलेट्स हैं, ये जो सारे तरीके हैं, ये हम सोशियोलॉजी में लगा सकते हैं. अब हम इन्हें लगा सकते हैं, लेकिन नीचे पॉइंट्स में लिख दो थोड़ा सा कि थोड़े से चैलेंजेस ये आते हैं. फिर भी वी कैन से दैट सोशियोलॉजी कैन बी अ साइंस बाय द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड. और हमने डर्कहाइम का जो आंसर है वो यूज़ कर सकते हो. यू कैन यूज़ मोर एग्जाम्पल्स, और भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे थिंकर्स हैं. व्हेन यू रीड अबाउट देम यू विल रियलाइज कि हाँ सबने साइंटिफिक मेथड ही लिया है टुवर्ड्स स्टडिंग देम, टुवर्ड्स स्टडिंग सोशियोलॉजी. ठीक है, सो यू कैन आंसर दिस ऑल्सो. नाउ 2016 देखते हैं, डिस्क्राइब द बेसिक पॉस्टुलेट्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, हाउ फार आर दीज फॉलोड इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च. डायरेक्ट क्वेश्चन है, बेसिक पॉस्टुलेट्स पूछ रहा है, और ये पूछ रहा है कि हाउ फार आर दीज फॉलोड, मतलब चैलेंजेस और लिमिटेशंस पूछ रहा है. ईजी. व्हाट इज वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी? क्लैरिफाई. वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी, यही वाला क्वेश्चन रिपीटेड है एक तरीके से यहीं पे, सेम कॉन्सेप्ट. वी हैव डन, वी हैव डेल्ट विद दिस. 2015, इज सोशियोलॉजी अ साइंस? गिव रीजंस फॉर योर आंसर. डायरेक्ट क्वेश्चन 2015 का ही. डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ हिस्टोरिकल मेथड इन द स्टडी ऑफ सोसाइटी. अब हिस्टोरिकल मेथड का क्या रेलेवेंस है? कार्ल मार्क्स का जो हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म है, या फिर वेबर का जो कंपेरेटिव एनालिसिस होता है सोसाइटीज़ का, या फिर एमाइल डर्कहाइम का जो
हम हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हैं सोसाइटी का कि कैसे सोसाइटी ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम मैकेनिकल टू ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी. ये सब वैसे आगे भी आएगा, लेकिन बेसिकली अगर मैंने इधर क्यों डाला है, जैसे तुम ये सोचो कि हाउ कैन यू यूज द हिस्टोरिकल मेथड इन द स्टडी ऑफ सोसाइटी. मैं तो बस ये दिखाना चाह रही थी कि जो हिस्टोरिकल मेथड है ना वो भी साइंटिफिक है. ठीक है, दैट वॉज माई पॉइंट ऑफ पुटिंग द क्वेश्चन ईयर. दिस इज नॉट रियली अ क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, बट यू नीड टू थिंक कि ये भी एक साइंटिफिक मेथड है, इसके अंदर भी एक साइंटिफिक अप्रोच लगी है. फिर 1997 का क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गुड हाइपोथेसिस. वैसे ये रिसर्च मेथड्स में भी आएगा आगे, लेकिन अ गुड हाइपोथेसिस, मैंने तुम्हें हाइपोथेसिस ऊपर पढ़ाया था. हाइपोथेसिस क्या होनी चाहिए? टेस्टेबल होनी चाहिए. ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो तुम कि इट शुड बी टेस्टेबल. फॉल्सिफाइबल भी कर सकती हूँ मैं उसे मैं ये इट शुड बी जनरलाइज्ड, इट कैन बी जनरलाइज लेटर ऑन हाइपोथेसिस. ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें जो ये पॉइंट्स है तुम इसके अंदर लिख सकते हो. हालांकि इसके अंदर और बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे कि एक गुड हाइपोथेसिस में और क्या क्या होना चाहिए व्हेन वी डील विद द टॉपिक रिसर्च मेथड्स. दैट इज यूनिट 3. जब हम नेक्स्ट यूनिट पे जाएंगे तब हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट 1986 का क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन सोशियोलॉजी. अब मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया था ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है. ठीक है, और ऑब्जेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स क्या है, ये बेसिक पॉस्टुलेट्स को अप्लाई करने में प्रॉब्लम्स क्या है, यही सारी प्रॉब्लम्स है. ऑब्जेक्टिव हो कैसे सकती हूँ मैं, राइट? बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज आई कैन नॉट रियली बी ऑब्जेक्टिव. तो ये भी तुम इधर से लिख सकते हो. हालांकि अगेन दिस टॉपिक विल बी डीलिंग इन डिटेल इन लेटर टॉपिक्स. ओके, सो आई थिंक वी आर डन with this. Before we end the class, I had this thing for you. देखो, a lot of people procrastinate. ठीक है, even I procrastinate at times. So when you try to beat procrastination, कुछ एक हम भी एक scientific method use करते हैं to beat procrastination. ठीक है, अब ये method क्या है, मैंने नहीं बनाया है. ये method Atomic Habits एक book है जो कि जेम्स क्लियर ने लिखी है. If you have time, you can read it. It's a very good read. You can read this. But if you don't read it, I'll tell you the basic rules जो कि उसने बताए थे. One is the 2-minute rule. अब सपोज करो तुम पढ़ने बैठे हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारी आदत है कि तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो. यू एंडलेसली ऑर्गेनाइज द स्टडी मटीरियल. अपने नोट्स को कलर कोड करोगे, अपनी स्टडी मटीरियल को अरेंज करोगे, दोबारा रीअरेंज करोगे. यू विल क्रिएट अ वेरी एम्बिएंट एनवायरमेंट टू स्टडी. पर जो मेन काम है ना, एक्चुअल स्टडिंग, उसके अलावा सब कर लोगे. यू हैव टू अप्लाई द 2-minute रूल टू ब्रेक दिस साइकिल. करोगे क्या? यू विल कमिट टू स्टडिंग फॉर जस्ट 2 minutes विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस. मतलब मैं कुछ नहीं सोचूंगी, कुछ नहीं, आई विल जस्ट सिट एंड रीड. मेन कॉन्टेंट आई विल स्टार्ट रीडिंग. यू विल रियलाइज दैट आफ्टर अ few attempts of doing this, you will get engrossed in what you're reading and you will beat this procrastination. Another trick to do this is habit stacking. अब क्या होता है, सपोज करो तुम्हारी आदत है कि यू कंपल्सिवली चेक योर सोशल मीडिया एवरी टाइम यू टेक अ ब्रेक. अब लेवरेज करो इस आदत को, लेवरेज करो इस हैबिट को. वॉट यू विल डू इज यू स्टैक दिस हैबिट विथ समथिंग प्रोडक्टिव. यू विल से कि मैं जितनी बार भी मुझे सोशल मीडिया देखना है उससे पहले मुझे 5 मिनट कोई टॉपिक रिवाइज करना पड़ेगा, या 5 मिनट मुझे सोशियोलॉजी ऑप्शनल का जो मैं टॉपिक पढ़ चुकी हूँ उसका आई एम गोइंग टू रिवाइज, एंड देन आई कैन वॉच द सोशल मीडिया फॉर 2 minutes. If you keep on practicing these habits, you will realize you would have beaten procrastination without even really trying. This is just a scientific method to beat procrastination. And let us try to be more objective in our ways when we are approaching life and UPSC in general. Although we do know हमारी भी limitations है कि subjectivity आएगी, पर्सनल वाइज कहीं जा नहीं सकता, और आलस कभी ख़त्म पूरी तरीके से होगा नहीं. विद दैट सेड, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.